તો સંજય મોલત્રા, જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ, રેવન્યુ સેક્રેટરી છે ભારત સરકારના. તેમના લીડરશિપમાં ઘણા બધા ડિસિશન્સ લેવાયા. કેપિટલ માર્કેટ્સના ઉપર જે ટેક્સેશન હતું એમનું કન્સલ્ટેશન બી એમના થ્રુ થયું. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક તેઓ માર્કેટ અને ઇકોનોમિક્સ તરફ જોડાયેલા છે. આરબીઆઈની સ્પેસિફિકલી વાતો કરીએ તો પહેલાં કયાસી હતા કે શક્તિકાંતા દાસને એક્સટેન્શન મળે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારે પસંદગી સંજય મલ્હોત્રા સાહેબની કરી છે. તેઓ રાજસ્થાનના કેડારના આઈએએસ ઓફિસર છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક તેમનું જે એક્સપિરિયન્સ છે કેપિટલ માર્કેટ્સને લઈને, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સેશન, ઇકોનોમીના તરફે, એ અનુભવ ક્યાંક ને ક્યાંક આરબીઆઈમાં ઘણું કામ લાગે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. જી યતિનજી, અને જ્યારે તેઓ નવા ગવર્નર બનવા જઈ રહ્યા છે તો આરબીઆઈ ગવર્નરને લઈને બ્રોકર્સના અમુક રિપોર્ટ્સ બહાર આવ્યા છે. શું મત બની રહ્યો છે બ્રોકર્સનો? તો બ્રોકરનો એક કોમન મત એ જરૂર છે કે આરબીઆઈ હવે ગ્રોથ તરફ ફોકસ કરશે. રેટ કટની તેઓ વાતો કરી રહ્યા છે, તો 5% જેટલી રેટ કટ થઈ શકે આગલા 12 મહિનામાં તેવું એમનું એક્સપેક્ટેશન છે. સિટીની વાત કરીએ તો તેમને 25 બેસિસ પોઈન્ટનું રેટ કટ આગળ જતાં જોવા મળી રહ્યું છે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક સંજય મલ્હોત્રાનું જે સ્ટ્રોંગ ફિસ્કલ અને મોનેટરી પોલિસીનું બેકગ્રાઉન્ડ છે, કોરિલેશન છે, કોઓર્ડિનેશન છે, એ કન્ટિન્યુ થતું રહેશે. તો ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી સાથે જે આરબીઆઈનું તાલમેલ છે એ કદાચ સંજય મલ્હોત્રા સાહેબ બનાવીને રાખે તેવી એક્સપેક્ટેશન સિટી કરી રહ્યું છે. ગોલ્ડમેન સેક્સની માનીએ તો લગભગ 50 બેસિસ પોઈન્ટની રેટ કટ આરબીઆઈ કરી શકે છે આગળ જતાં. અને ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ફ્લેશન એક તકલીફની વસ્તુ હોઈ શકે છે, પણ ત્યાં કેવું બેલેન્સિંગ એક્ટ કરે છે તેઓ અત્યારે મોનિટર કરશે. યુબીએસની વાત કરીએ તો તેઓ 75 બેસિસ પોઈન્ટનું સૌથી વધારામાં વધારે રેટ કટ એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક એક આરબીઆઈ ગવર્નરનું જે રોલ છે ઇન્ફ્લેશન વર્સિસ ગ્રોથનું, એ કેવી રીતે બેલેન્સ કરે છે એની માટે તેઓ વોચઆઉટ કરશે. આગળ વધીએ અને જે રીતે આપણે ચર્ચા કરી અને આજે જે રીતે સમાચાર બનતા દેખાઈ રહ્યા છે, આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંતા દાસનો આજે તેમના કાર્યકાળનો છેલ્લો દિવસ હતો અને આટલા વર્ષ તેમણે આરબીઆઈના ગવર્નર તરીકે કાઢ્યા છે. આવતીકાલથી નવા આરબીઆઈ ગવર્નર આપણને આવતા જોવા મળશે. આપણી સાથે ચર્ચામાં CNBC TV 18 लता वेंकटेश जुड़ाई गया है. लता मैम, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर. और सबसे पहले अगर बात करें शक्तिकांता दास सर की, तो जैसे हमने देखा है चैलेंजेस बहुत थे उनके सामने और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो चैलेंजेस को मेंटेन किया हुआ था और अच्छे से आरबीआई गवर्नर का जो पोजीशन है वो मेंटेन किया हुआ था उन्होंने. तो उनका कार्यकाल अगर देखें तो कैसा रहा है आपके हिसाब से? मैं तो उनको 8 या 9 आउट ऑफ 10 दूंगी. उन्होंने हर डिपार्टमेंट में रिजर्व बैंक को बहुत अच्छी तरह नेतृत्व दी. आपको याद होगा जब उन्होंने आया था, उर्जित पटेल को फाइनेंस मिनिस्ट्री से जमता नहीं था, तो उनका रिलेशन बहुत ख़राब था गवर्नमेंट वर्सेस आरबीआई. तो उनको वो माहौल को भी सुधारना था, सॉफ्ट स्मूथ करना था. और बैंकों में बहुत एनपीए था, वो लगभग रियलाइज कर चुके थे, लास्ट टेल बाकी था, लेकिन वो भी काम उनको करना पड़ा. तो वो पहले तो उन्होंने रिलेशनशिप को स्मूथ किया और उसके बाद हम सीधा कोविड में घुस गए. और उसके बाद कोविड में सब बैंकों को ज़्यादा पैसा देना था. वो एक TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो करके, यू हैव टू गिव मनी. लेकिन उन्होंने बहुत होशियारी से हर लॉन्ग टर्म रेपो का एक एक्सपायरी डेट दिया था कि ये टाइम के बाद ये नहीं चलेगा, नहीं तो वो इन्फ्लेशन में एंड हो जाएगा. अगर इतने सारे सामान के लिए आपने डबल पैसा लगा दी, हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा ना. यू कैन कीप ऑन प्रिंटिंग मनी. तो मनी आप प्रिंट करोगे, उसको आप एक एंड डेट देना चाहिए. और उन्होंने बहुत होशियारी से, विजडम से वो किया था. इसलिए बाकी के देशों में, US में सब हमने डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखा, यूरोप में देखा, हमने डबल डिजिट इन्फ्लेशन तक नहीं गया. तो उन्होंने कोविड में बहुत समझदारी से ये काम की. और उसके पहले उनको वो NBFC का, हालांकि बैंक का ज़्यादातर NPA हो गया था, उनको NBFC का एक्सीडेंट्स उनके टाइम में हुआ था. या IL&FS जस्ट उनके आने के पहले हुआ था. और IL&FS के वो डोमिनो होता है, एक गिरा तो सब गिरते हैं. तो DHFL, श्रेय इंफ्रा, ऐसे बहुत सारे उनको उसको कैसे भी संभालना था क्योंकि पैसे अटके हुए थे. तो उन्होंने श्रेय को संभाला और DHFL के लिए पिरामल एक ओनर IBC रूट से उन्होंने फाइंड आउट किया. तो बहुत अच्छी तरह ये बैड लोन्स को भी उन्होंने संभाला. और 2 बैंक भी गिरे थे उनके टाइम में, मतलब ऑलमोस्ट. येस बैंक, तो उसमें उन्होंने SBI और बाकी के बैंक्स के इक्विटी डालकर उसको संभाला. RBL में तकलीफ़ें थी, उन्होंने लीडरशिप को बदले. LVB में तकलीफ था, LVB को उन्होंने DBS को दे दी. इतने सारे डिफ़िकल्टीज़ हुए थे बिटवीन उनके आने में और कोविड के टाइम में. इतने सारा संभाला, हमने कुछ महसूस किया नहीं. मार्केट में इतना बड़ा कोई ये एक्सीडेंट जैसा नहीं लगा
ट्रेमर नहीं लगा। और फिर उसके बाद पोस्ट कोविड वो एक मतलब वन ऑफ द रेयर गवर्नर्स हैं जिनके रिकॉर्ड वो जाते जाते लास्ट 3 ईयर 7% के ऊपर जीडीपी है, वेरी गुड रिकॉर्ड। और मैंडेट था इन्फ्लेशन को 2 और 6% के बीच में रखना है, करेक्टली वी से 4% ±2%, तो वो 2 to 6 होता है, वो ज़्यादातर उन्होंने अचीव किया है। तो मैं समझूंगी उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा और आने वाली प्रॉब्लम्स भी वो सूंघ सके क्योंकि उन्होंने अच्छे सिस्टम्स डाले थे, इसलिए वो अनसिक्योर्ड लोन और एमएफआई के प्रॉब्लम्स वो अहेड ऑफ द कर्व समझ पाए और रिस्क वेट्स को बढ़ाया। डिजिटल में उन्होंने बहुत मतलब काम किया। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, हमारे एक देश है जहाँ पर काफ़ी उसका पायलट तरक्की हो गया है, पायलट है लेकिन वो उसको स्केल अप करना, नेशनल बनाना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि पायलट काफ़ी सक्सेसफुल है। कुछ 1 मिलियन लोगों के पास है सीबीडीसी अकाउंट। वैसे ही यूपीआई लेंडिंग, यूपीआई तो था ही, अभी यूपीआई के जरिए लोन्स देना वो उन्होंने आसान कर दिया। अब लोगों को लोन देना थोड़ा आसान हो गया है क्योंकि पैसा पहुंचाना आसान हो गया है यूएलआई के जरिए, यूनिफाइड लेंडिंग, यूपीआई लेंडिंग के जरिए। सो आई वुड गिव हिम लाइक गुड मार्क्स ऑन एवरीथिंग। यस मैम, और जैसे आपने इतने सारे उनकी जो चैलेंजेस हैं उनके सामने वो जैसे उन्होंने डील की, तो अभी जो नए गवर्नर हम कल से संजय मल्होत्रा जी हमें आते हुए दिखेंगे, तो उनके सामने क्या चैलेंजेस एज अ आरबीआई गवर्नर आप देख रहे हैं? क्योंकि आप आरबीआई पॉलिसी को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो तो आपको पता है क्या क्या चैलेंजेस, जैसे आपने बताया कि शक्तिकांता दास ने एक लेवल सेट किया हुआ है, बहुत हाई लेवल सेट किया है, तो जो नए गवर्नर है उनके लिए भी क्या चैलेंजेस रहेंगे? ये आपने सही बोला कि टू बी एज गुड एज द प्रीवियस गवर्नर तो एक चैलेंज है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली वो प्रेजेंट चैलेंज उनका ये होगा कि ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में कम हुआ, बहुत कम हुआ, 5.4। तो वो ग्रोथ को कैसे भी, वो एरो ऐसा है ग्रोथ का, वो एरो को ऊपर करना है, मेक इट बॉटम आउट। और इन्फ्लेशन ऐसे चल रहा है, 6.2 है लास्ट नंबर, वो एरो को कम करना है। सो दैट इज व्हाट, वो ग्रोथ इन्फ्लेशन के बैलेंस को उल्टा करना है। अभी नाउ ग्रोथ इज स्लोअर, इन्फ्लेशन इज हायर, इट हैज टू बिकम द अदर वे अराउंड, ग्रोथ इज हायर देन एक्सपेक्टेड, इन्फ्लेशन इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। ये उनका सबसे अहम चैलेंज है और एक तरह से एक परसेप्शन से उनको लड़ना होगा। मार्केट का हमेशा ये एक ईजी कंक्लूजन है, हाँ फाइनेंस मिनिस्टर से आया तो गवर्नमेंट की सुनेगा। वो ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर उनके टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ा और रुपये पे अटैक आया तो लोग उनको ही दोष देंगे। सो इट इज़ वेरी स्टूपिड टू एक्सपेक्ट दैट हाँ वो उधर से आया तो उनके सुनेगा, नहीं, उनका अपना गोल्स है, गवर्नर के गोल्स, और वो उसी के लिए काम करेंगे। सो आई थिंक ग्रोथ इन्फ्लेशन इज इज बिग प्रॉब्लम। परसेप्शन फाइटिंग विल बी अ बिट ऑफ अ इश्यू। जो भी करेंगे वो हाँ ये तो सरकार के लिए कर रहा है, वो परसेप्शन को भी उनको लड़ना पड़ेगा। एंड देन द ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स, आपको याद होगा रिजर्व बैंक ने बैंक्स को क्लीन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे स्टार्ट किए, सब ड्राफ्ट में है। अनसिक्योर्ड लोन्स को तो उन्होंने रिस्क वेट बढ़ा दिया, लेकिन बाकी के जैसे एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजनिंग, ये दुनिया भर में बैलेंस शीट बनाते वक्त, पीएनएल बनाते वक्त एक्सपेक्टेड लॉस के जरिए प्रोविजन करते हैं। मतलब अगर समझो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में बहुत लॉस होता है या स्टील में या पावर में, तो उसका प्रोविजनिंग बड़ा होता है। और अगर समझो ऑटो लोन या होम लोन, उसमें ज़्यादा डेंजर नहीं है, लोग नॉर्मली होम लोन पे उसका प्रोविजनिंग कम होना चाहिए। ऐसा एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजनिंग, डायनामिक प्रोविजनिंग का एक प्रवाह है जो उन्होंने ड्राफ्ट रेगुलेशंस दे दी। बहुत पुशबैक है मिनिस्ट्री से, पब्लिक सेक्टर बैंक से, क्योंकि ज़्यादा पैसा निकाल के रखना पड़ेगा, वो ख़त्म करना है। वन वे और द अदर ही हैज़ टू डू द एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजंस। द अदर थिंग इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। एक महीने में इतना पैसा जाएगा तो उसको गवर्नमेंट बॉन्ड में रखना चाहिए, ये एक रूल है, लिक्विडिटी कवर। बिकॉज इफ पीपल कम एंड आस्क, यू कांट से अरे सॉरी तुम्हारा डिपॉजिट्स मैंने लोन में दिया है अभी नहीं है। नो बैंक कैन से दैट। सो एक एवरेज निकाल के रखते हैं बैंक्स और उतना बॉन्ड्स में रखते हैं जो इमीडिएटली कैश करके दे सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, जैसे आपको मालूम है बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड जरिए सेव करते हैं, तो वो सेविंग्स एफडी के जरिए नहीं आता है, म्यूचुअल फंड के जरिए आता है।
बैंक्स के पास, म्यूचुअल फंड के अकाउंट बैंक्स में ही रहता है, लेकिन वो फास्ट मूविंग मनी है, अनस्टेबल डिपॉजिट है। तो आरबीआई ने कहा तुम उसके लिए ज़्यादा लिक्विड कैश रखो। बैंक्स रेजिस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट रेजिस्ट कर रही है कि पीएसयू बैंक्स अगर इतना प्रोविजन करते जाएंगे तो वो लेंड क्या करेंगे। उसका भी एक नॉर्मल सोल्यूशन तरीके से उसको सुलझाना है। एंड थर्ड इज हायर प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स। आरबीआई ने एक ड्राफ्ट दिया है, उसका भी अभी तक कुछ विशेष रूप से एंडिंग नहीं हुआ है। ये सब तो उनको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास है कि जनवरी 20 के बाद क्या होगा। जनवरी 20 को ट्रम्प शपथ लेंगे और उसके बाद वो टैरिफ करेंगे, तो रुपी पे अटैक होगा या यूएस यील्ड्स ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं। चाइना को पूरी तरह ब्लॉक करेंगे तो वो उनका गुड्स वो बाकी के देशों में डंप करेंगे, तो फिर हमारा ग्रोथ और इन्फ्लेशन का क्या होगा। तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक पीरियड है जो इनको हैंडल करना पड़ेगा।